Yes, we are live now. A very good afternoon to everyone. I hope you all are doing great. So राजे बेसिकली ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਕੋਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇ 67 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਰਾਜੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੀ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ YouTube ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਡੇ 67 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਵਕੈਬ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ YouTube 'ਤੇ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ YouTube 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ क्वेश्चन नंबर 1 ਤੇ मूव करते हैं बेटा जी। द वर्ड एनॉमली मोस्ट नीयरली मीनस ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਵਰਡ ਦੀ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ, ਬੈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸੇਨ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ। ए पार्ट ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ B ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਈ। ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਨੋਮਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ B ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਡ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਔਫੁਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਔਫੁਲ। I feel awful about this situation, I feel bad about this situation। ਇਨਸੇਨ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਟੋਰਚਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਾਗਲ, ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ B ਆਪਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੈ, प्यार भरी गुड आफ्टरनून है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज रैफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग। ध्यान नाल देखियो, आ वाला क्वेश्चन मैं कल दी क्लास दे विच भी करवाया सी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज रैफर्स टू द सिस्टम ऑफ मीनिंग। सिस्टम ऑफ मीनिंग की गल कौन करता है, आपने सेंटेंस फॉर्मेशन दे, सेंटेंस फॉर्मेशन जो आप बनाई है उनका एक्चुअल च मीनिंग की डिलीवर होया है, एक्चुअल विच मीनिंग की डिलीवर होया उनकी गल कौन करता है, दैट इज़ अ सीमेंटिक। मॉर्फोलॉजी आप पढ़ लिया, लॉजी मतलब की होंदा है, स्टडी होंदा है, किंदी स्टडी गल करते हैं, एक्चुअल च वर्ड दी, ठीक है। सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की गल करता है, स्ट्रक्चर की गल करता है। एंड द फोनोलॉजी साउंड्स की स्टडी नूं आपां कहना, लॉजी मीनस स्टडी होंदा है, ये भी लिख लिया जे, लॉजी मीनस स्टडी। इज इट क्लीयर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द चेंजिस इन एनी लैंग्वेज रिफ्लैक्ट। किसी भी भाषा दे विच चेंजिस रिफ्लैक्ट करदियां ने इंडिविजुअल वेरीएबिलिटी ते, मैसिव एंड यूनीफॉर्म एलिट्रेशन ते, यूनीफॉर्म एंड ग्रैजुअल एलिट्रेशन ते, या फिर मैसिव यूनीफॉर्म एंड ग्रैजुअल एलिट्रेशन ते। सो देखो एक गल याद रखिया करो, जिवें दे क्वेश्चन तुहानूं लगदे होण कि पेपर विच, नो डाउट एक गल ध्यान नाल सुन के चलो, तुसी चाहे 100 to 500% पढ़ के चले जाओ, जो पेपर विच आना ना, मेरी एक गल हमेशा याद रखिया जे, जिन्ना मर्जी तुसी पढ़ लो, भावें तुसी 2 साल तो पढ़ रहे हो, 5 साल तो पढ़ रहे हो, 6 महीनों तो पढ़ रहे हो, जिन्ना पढ़ो उन्ना घट है। पेपर विच एक पॉइंट तो तुहानूं हमेशा ही लग्या करेगा, हाय अस तो कुछ पढ़िया ही नहीं, लगेगा पेपर तो पहले हमेशा लगेगा अस हाले कुछ पढ़िया ही नहीं, ठीक है। सो इन शॉर्ट पेपर विच बड़े ही क्वेश्चन तुहानूं एवें दे भी दिखणगे जिथे तुहानूं लगदा होएगा कि सानूं एक्चुअल च इनदा मीनिंग नहीं पता, ना ही सानूं ये डायरैक्ट क्लास दे विच पैडागोजी विच करवाए गए क्वेश्चन। बट इन्हां क्वेश्चनस नूं किवें डील करना है, ध्यान नाल देखना है। हुण लाइक दिस क्वेश्चन, द चेंजिस इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा दे विच जिहड़ी चेंजिस है, हमेशा एक गल याद रखिया जी, हमेशा आपां किहड़ी ऑप्शन नूं चूज करने जिंदे विच सारियां ऑप्शन समाईयां हुंदियां ने। मैं एलिमिनेशन मैथड तुहानूं सिखाया, हुण इहदे विच भी देखो, मैसिव बी ऑप्शन च आ रहा, यूनीफॉर्म भी बी ऑप्शन च आ रहा, ग्रैजुअल एलिडेशन की भी गल सी ऑप्शन च कीती हुई है। इट मीनस
मैक्सीमम या आप कहिए वेटेज किहड़ी ऑप्शन दी है, डी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर भी की बन जाएगा डी। बट ये उदों अप्लाई करना है जदों, क्योंकि तुहाडा नैगेटिव मार्किंग नहीं है, जो तुहाडी नैगेटिव मार्किंग नहीं है, तुहानूं ये लगदा कि असीं एक अद्धा क्वेश्चन क्यों छड्डीए, उदों एवें दे तुसीं एलिमीनेशन मैथड या प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है। अदरवाइज हर एक चीज़ नूं पढ़ के समझ के आंसर करना है। क्लीयर है जी? क्योंकि इन्ना पढ़े का फिर फायदा है कि जे सीधा तुक्के ही लगाने ने। चलो क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्टर एज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय अ स्पैसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल रेफर्स टू। रजिस्टर की गल मैं ऑलरेडी बहुत बारी क्लास दे विच करवा चुकी हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਲੈਕਸੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਗ੍ਰਾਮੈਟਰੀਕਲ ਐਂਡ ਫੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? चलो क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ट्रेडिशनल क्लासिकल इंग्लिश। बताइए जी, वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, सब तो ईजी। हुण राजे डायरैक्ट मैथड अच्छा मैथड है, न्यू मैथड भी इनू आपां कह दिंदे आ। न्यू मैथड क्यों है, या फिर इनू आपां एक होर कह दिंदे आ एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, इहदे विच आपां कोई भी ग्रामर का यूज़ दूसरी भाषा के नाल नहीं करते। ध्यान नाल सुनो, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की हुंदा है कि मैं इंग्लिश दे विच कुछ भी लिखिया उन्होंने मैं पंजाबी विच ट्रांसलेट करके पढ़ा रही हाँ। हाँ जी, हाँ जी राजे, आई होप कि आवाज़ सारे आ रही होएगी। चलो मैं बेसिकली ये गल कर रही सी कि ध्यान नाल देखियो, 2-3 मैथड मैं एक क्विक रिवाइज करवा देनी है। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड की होंदा है कि जो इंग्लिश दे विच लिखिया है उन्होंने मैं दूसरी भाषा मतलब अपनी मदर टंग लैंग्वेज में तुहानूं एक्सप्लेन करा, जो आप करते हैं। आप क्लास में ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे को डायरैक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश समझना औखा लगता है। ठीक है, बट एक गल याद रखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड नूं आपां ओल्डेस्ट मैथड कह दिंदे आ। ओल्डेस्ट मतलब बहुत ही पुराना है, इन्ना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जेकर आप नवी भाषा सीखनी है उनके लिए ये अच्छा मैथड तां नहीं कंसीडर करिया जाता, क्योंकि बच्चा टोटली डिपेंड रहता अपनी मदर टंग पर। ठीक है, इस करके उन्होंने ओल्डेस्ट मैथड कह दें। डायरैक्ट मैथड का मतलब कि जेकर मैं इंग्लिश भाषा सीखन आई हाँ क्लास के, तो मैं डायरैक्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन करांगी, इंग्लिश में ही सारे कंसैप्ट सीखांगी, हर एक चीज़ मैं सोचांगी भी इंग्लिश के। ईवन कि अपने नाल की हुंदा है, आपां जदों नवी भाषा सीखनी हुंदी है ना, उदों हुण मैं तुहानूं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख बोलां, तुहाडे पहला दिमाग से ट्रांसलेट भी पंजाबी च होएगा। ठीक है, वो आपां क्योंकि ह्यूमन नेचर आपां डायरैक्ट भाषा सीखी नहीं इंग्लिश, दैट्स वाई इंग्लिश सॉरी डायरैक्ट मैथड न्यू मैथड है, इनू एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड कहने हैं, क्योंकि इहदे च आपां बिल्कुल भी ग्रामर का यूज़ नहीं करते। ग्रामर का मतलब है ट्रांसलेट नहीं करते, लाइन टू लाइन ट्रांसलेट नहीं करते। ठीक है, बायलिंगुअल मैथड की होंदा, बायलिंगुअल मतलब दो भाषावां की गल हुंदी है। ये स्टार्टिंग दे विच तां बायलिंगुअल मैथड यूज़ करते हैं, उही कि मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हाँ बच्चों को, पंजाबी भी पैरलल पढ़ा रही हाँ, बट इंग्लिश बच्चों को डायरैक्ट औखी लगती है, तो इस करके मैं पंजाबी का सहारा लैके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हाँ। बाद दे विच एक ही हो जाती है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब की है, दो भाषावां यूज़ करके तुसीं बच्चों को एक भाषा सिखा रहे हो, उन्होंने आप कह देंगे मोनोलिंगुअल। टैक्सट बुक मैथड होंदा कि बच्चों जस्ट बिहाव टैक्सट बुक दे तुसीं वो भी सुनिया होएगा डॉक्टर वैस्ट मैथड। डॉक्टर वैस्ट मैथड के उन्होंने सिर्फ यही गल की सी कि सिर्फ बच्चा रीडिंग के नाल कंसैप्ट सीखेगा। ठीक है, उन्होंने ये पूछा सी विच इज़ द ट्रेडिशनल क्लासिकल इंग्लिश, वही ट्रांसलेशन मैथड मैं तुहानूं दस दिता, ओल्डेस्ट मैथड है। विदाउट एनी डाउट अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्लीयर है जी? चलो हाँ जी राजे, ETT कैडर का बेसिकली अपना मॉक टेस्ट 13 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाना है, एंड बाकी रैस्ट ऑफ जिन्ने भी एग्जाम ने उन्होंने मॉक टेस्ट 14 दिसंबर को होएगा। ठीक है,
ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ QR ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਫॉर ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਇੱਕ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬੜੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ? ਨੋਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ग्रामर प्रोसीडिड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है जी। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इंडक्टिवली मतलब क्या होता है? फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर टॉट एट डेफिनाइट स्टेज थ्रू द स्पोकन लैंग्वेज, या फिर आर्टिकुलेशन विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेशन मैं दस चुकी हाँ, बहुत सारिया चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हैं डे टू डे क्लास के। बताइए जी क्या आंसर होगा? डायरैक्ट मैथड में आप इंडक्टिवली इनू यूज़ करते हाँ, ठीक है। डायरैक्ट मैथड अच्छा मैथड है, आप बच्चों को सिखाना एग्जाम्पल टू रूल सिखाना है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर टोट एट अ डिफाइंड स्टेज थ्रू द स्पोकन लैंग्वेज। जिमें मैं बच्चों को कुछ एवें दे वर्ड्स कहना, लेट्स गो, स्टॉप, है ना, या कुछ ईडियम्स, कुछ फ्रेजेस जोड़े आप डे टू डे व्हाट्स गोइंग ऑन काइंड ऑफ वर्ड्स आप डे टू डे लाइफ के डायरैक्ट भाषा के सिखावे, बच्चा डायरैक्ट सीखेगा, ये भी सही है। आर्टिकुलेशन विद द करैक्ट प्रोनाउंसिएशन, हाँ जी, तुहाडे मूवमेंट्स के जोड़े ऑर्गनस ने, तुहाडे मूँह के जोड़े ऑर्गनस ने किवें हैल्प करते हैं, किवें प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स नूं, इंटोनेशन किवें स्ट्रैस पाते हैं, किवें अपनी जिहड़ी रिदम है उन्होंने उपर अप डाउन करते हैं, पिच नूं, सारियां दी गल करते हैं। बस ग्रामर प्रोसीडिड लैंग्वेज लर्निंग की गल नहीं करते। ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म नोशनल फंक्शनल अप्रोच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एक्चुअल से बेसिकली गल करते हैं हाउ लैंग्वेज यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। किसी भी भाषा नूं तुसीं आपदे डे टू डे लाइफ दे विच रियल लाइफ सिचुएशन किवें यूज़ करते हो उनकी गल करते हैं। सो स्ट्रक्चरल अप्रोच आएगा नहीं जी, सिचुएशनल की गल नहीं जी, स्ट्रक्चरल सिचुएशनल दोनों नहीं। द कम्यूनीकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच विल बी राइट आंसर, ठीक है। कम्यूनीकेट का मतलब की होंगे गलबात, तुसीं डे टू डे लाइफ के गलबात ही तो करते हो, बिना गलबात तुसीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, है ना। सो उनकी ही गल करते हैं, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेपरेटरी रीडिंग में ऑल्सो बी कॉल्ड। Preparatory reading may also be called formal reading, incidental reading, loud reading, extensive reading. Very easy है, बहुत easy है। Preparatory reading राजा जो आपने बैकग्राउंड नॉलेज की गल करते हैं, किन दी गल करते हैं? बैकग्राउंड नॉलेज की इहदे विच गल हुंदी है, ठीक है। इहदी गल आपां जेकर गल करिए एज अ ब्रीफ करते हैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी आप रीडिंग करते हैं ब्रीफ कंसैप्ट के नाल, स्कीमिंग स्कैनिंग दोनों की ही गल इहदे विच हुंदी है। सो राइट आंसर की आएगा? फॉर्मल रीडिंग, इंसीडेंटल रीडिंग, लाउड रीडिंग या एक्सटेंसिव रीडिंग? हुण सही सही आंसर दस दो। राइट आंसर की आ जाएगा अपना बी ऑप्शन, दैट इज़ अ इंसीडेंटल रीडिंग। फॉर्मल रीडिंग तुहानूं पता ही है, लाउड भी पता है, साइलेंट ते लाउड दा डिफरेंस, एक्सटेंसिव तुहानूं पता ही है। जो आपां जॉय, इंटरस्ट इन्हां दे नाल जो आपां बच्चे नूं पढ़ाउने आ या बच्चा पढ़दा बेसिकली, ठीक है। सो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 का आंसर करो बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग रीडिंग लेस एम्फेसाइजेस ऑन द इंडिविजिबल यूनिट ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज? थॉट एंड लैंग्वेज के बिहाव से दसो। द लुक एंड से मैथड, फ्रेज मैथड, सेंटेंस मैथड या फिर फोनिंग मैथड? बताइए जी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग रीडिंग लेस एम्फेसाइजेस ऑन द इंडिविजिबल यूनिट ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज? सिंपल है आंसर। लुक एंड से मैथड के नाल नहीं यूज़ करांगे, इन्हूं आपां फ्रेजिस के नाल नहीं करांगे, सीधा सेंटेंस की गल आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की गल आएगी, किवें सेंटेंस नूं यूज़ करना है। आपां जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, भाषा नूं यूज़ करते हैं सेंटेंस फॉर्म दे विच, कल्ली साउंड की गल नहीं आएगी। सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत दसना है। डिक्टेशन कैन हेल्प्स इन टीचिंग स्पैलिंग, ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल करिया जे, ठीक है। डिक्टेशन कैन हैल्प इन टीचिंग स्पैलिंग, बच्चे नूं सिर्फ स्पैलिंग सिखाना नहीं राजे, इहदे नाल बच्चे दी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन भी तो डिवेलप होएगी। बच्चा जेकर एक्टिवली सुनेगा ही नहीं तो नोट भी नहीं कर सकता डिक्टेशन, ठीक है। सिंपल स्पैलिंग की गल नहीं करेगा, पहली गल तो आही मैनूं इनकरैक्ट लग रहा, फिर भी देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कैन यूज फॉर द प्रैक्टिसिंग राइटिंग, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब की होंदा है जो भी आपां बोल रहे हैं राइट डाउन टू द स्पोकन वर्ड्स, जो आप बोल रहे हैं उन्होंने आप रिटन फॉर्म दे विच लिखना है, उनकी गल कर रही है, ये तो ठीक है। सबस्टिट्यूशन टेबल्स में बी यूज फॉर टीचिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। सबस्टिट्यूशन टेबल हैल्प करते हैं नवे सेंटेंस नू क्रिएट करने लई। इन अ गुड कंपोजिशन आइडिया शुड बी प्लेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये भी ठीक है राजे, ये ही अपना इनकरैक्ट बनता पाया सी, ठीक है जी। चलो हाँ जी राजे, आपने जिन्ना बच्चों ने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करे, ETT SST मैथ साइंस स्पैशल एजुकेटर आर्ट एंड क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, तुसी इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक नई इंफॉर्मेशन, लेक्चरर कैडर पॉलिटी द न्यू बैच 1 दिसंबर तो स्टार्ट होने जा रहा है। तुहाडे नॉन दे विच जेकर कोई होए जिन्होंने लेक्चरर कैडर की तैयारी करनी है तो रिकमेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 11, साइलेंट रीडिंग मे बी, साइलेंट रीडिंग दो तरह की रीडिंग होंगी है, साइलेंट एंड लाउड। वो कह रहे हैं जी साइलेंट रीडिंग की है प्रैपरेटरी इन नेचर, हुणे तो दस के आई हाँ, रिवाइजनरी इन नेचर, नाइदर ए नॉर बी तो बोथ ए एंड बी। सीधा आंसर है, सिंपल है, दोनों ही आएंगे। जो आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं उन्होंने प्रैपेयर भी करते हैं, उन्होंने बाद आप रिवाइज भी करते हैं, सारिया की ही गल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन आ Thesaurus words and phrases of the language are classified according to, Thesaurus भी कह देने इनू, बेसिकली ये किन्ना वर्ड्स की गल करते हैं जिन्ना वर्ड्स की आप सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, उन्होंने एक्चुअल मीनिंग की जो आप गल करते हैं उनकी गल करते हैं, ठीक है जी। मीनिंगफुल वर्ड्स की गल करते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ द लैंग्वेज आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, ऑर्थोग्राफी, सिमिलैरिटी इन मीनिंग या फिर एंटमोलॉजी। दसो राजे, तुहानू पता है ना ऑर्थोग्राफी किन गल करते हैं अपनी स्पैलिंग की, कि एक्चुअल तुसी स्पैलिंग किन्ने अच्छे लिखे किवें लिखे सही उनकी गल करते हैं, क्योंकि एक्चुअल च बच्चों को लगता है कि शायद स्पैलिंग ना कुछ होर हो सकते हैं। एक किसी भी वर्ड की एग्जाम्पल ले लो, एंटमोलॉजी ले लो, एंड स्पैलिंग कुछ हो सकते हैं, बट जो सही आंसर होएगा उनकी गल करते हैं, ठीक है। तो एंटमोलॉजी किन गल करती है, स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑफ ओरिजिन, मतलब किसी वर्ड दे दा ओरिजिन कितों होया है उनकी गल करती है, ठीक है। अपना राइट आंसर की बनेगा, देयर साउंड, साउंड तो पता ही है किन गल करते हैं, फोनोलॉजी की। ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ एक्चुअल च मीनिंग कन्वे करते हैं, सिनोनिम एंटोनियम फ्रेजेस, वो लैंग्वेज के सिमिलैरिटी इन मीनिंग की गल करते हैं, ठीक है जी। सो सी विल बी राइट आंसर। पॉइंट क्लीयर होया, हुणे ही दस्सिया एक्चुअल मीनिंग की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन इफ आई वर आ किंग, मतलब एक सेंटेंस दिता है बच्चे को एसे या स्टोरी लिखने क्या है कि जेकर मैं राजा हुंदा तां वी आर आस्किंग हिम टू राइट अ और एन, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, रिफ्लैक्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे या फिर इमेजिनेटिव। सिंपल आंसर है, सीधा आंसर है। कल की क्लास के आई थिंक सारे ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन करे सी, ठीक है। राइट आंसर की आ जाएगा डी, इमेजिनेटिव का मतलब कि बच्चा इमेजिन करेगा जेकर मैं पूरे इस जगह का किंग हुंदा, राजा हुंदा या मैं क्वीन हुंदी तो मैं किहड़े लोगों की मदद लई काम करने से, सारिया चीज़ां इमेजिनेटिव ने, ठीक है। ईजी ईजी क्वेश्चन सी ना। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस, ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इनका मतलब की है, साउंड्स की ग्रुपिंग की गल कर रहे हैं, वर्ड्स की, फ्रेजेस या मीनिंग की, साउंड वर्ड्स फ्रेजेस एंड मीनिंग। सिंपल आंसर, मैनू इन्ना तो पता चल गया कि हुण तुहानू ये गल पता है कि आंसर किवें लगाना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत लबना है। फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, बिल्कुल ठीक है जी ये तो। मॉर्फीम इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीच, अरे on the meaning side, okay। morpheme is the first basic unit in the expression system of the language, या फिर morpheme is typically composed of one to several phonemes। आता ठीक है, morpheme ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਨੀਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨया वर्ड्स बनाते हो, उनकी गल कर रहे हैं, तो सही है। हाँ जी, बताइए जी क्या आंसर होगा। दो ऑप्शंस रह गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। morpheme is the basic unit of speech, speech ਦਾ basic unit ਹੈ। ਇੱਕ ਫਨੀਮ ਨੂੰ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਨया ਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੋਰਫੀਮ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਬੇਸਿਕ यूनिट इन द एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा आज 16 क्वेश्चन हो गए। दैट लैंग्वेज कैन बी लर्नड इज अ, कोई भी भाषा सीखनी है वो मिथ है। मिथ मतलब आप कहते ना कि एवें असम्पशनस बनाई हुई ने। ट्रुथ सच्चाई है। बेसिकली हैरसी का मतलब होंदा है कि पखंड, काइंड ऑफ पखंड वर्ड यूज़ कर देना। तो फिक्शन तुहानूं पता ही है। हाँ जी, लैंग्वेज एक्चुअल की है, ट्रुथ है, भाषा की है, सच्चाई है, कोई पखंड नहीं है, कोई मिथ नहीं बनाए गए, कोई आपदे असम्पशनस नहीं यूज़ किए गए। सीधा राइट आंसर अपना की बन जाएगा सी ऑप्शन, ओ बी ऑप्शन, ठीक है। सो राजे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जिन्ना बच्चे ने ज्वाइन नहीं करे इन्हू ज्वाइन कर लेना, एंड आपने सोशल मीडिया हैंडल्स नू भी ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं करें। ये थोड़ी आंसर की है 16 तक अज क्वेश्चन सी, एक अद्धा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया होएगा। सो आई होप कि सारे बच्चों को अगला सैशन समझ लग गया होएगा। इन केस कोई डाउट रहिंदा तो तुसीं कमेंट बॉक्स के मैनूं कमेंट करके दस देना, ठीक है राजे। सो अज दा सैशन इत्थे ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप स्पॉटिंग। थैंक यू राजे।